بخاری کی پہلی حدیث ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ایک بار نہیں دسیوں بار یہ حدیث پڑھی گئی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آگے اس کی تشریح ہے، فمن کانت ہجرتہ، اعمال کا دائرہ مدار نیت پر ہے۔ جس نے جس مقصد کے لیے ہجرت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد کے مطابق اسے اثرات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اثرات کے مطابق ان کی فضیلت کو بڑھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ وعدہ کرو کہ اس جلسے سے آپ اس جلسے میں آئے ہیں، مقررین ابھی باقی ہے، آپ کی صبح بھی تقریر ہونی ہے، جتنی باتیں ہوں گی دین کے مطابق ہم اس پہ عمل کریں گے 100% انشاءاللہ۔ اگر عمل کا جذبہ لے کے آئے ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا مل کر اگر ہمیں ڈرانا چاہے، پوری دنیا مل کر مسلمانوں کو کاٹنا چاہے، مسلمانوں کو مولی قادر کی طرح کاٹنا چاہے، نہیں کاٹ سکتا میرے دوستوں۔ حجاب پر پابندی لگانے والے خود مٹ جائیں گے جس دن ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو اگر چینج کر لیا، بدل لیا، تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی ہے۔ بس اپنے آپ کے اندر بدلاؤ کی کیفیت لاؤ۔ میری ماں بہنوں، آپ پردے میں تشریف رکھتی ہو، آپ کے لیے ایک واقعہ میں آپ بلد بتا کر انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، قوم فاطمہ نبی کی بیٹی فاطمہ، قوم فاطمہ حسن حسین کی ماں فاطمہ، قوم فاطمہ علی کی بیوی فاطمہ، قوم فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار فاطمہ، وہ فاطمہ جس فاطمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور یہ فرما دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ فاطمہ کو یہ خوشخبری دے دو کہ جنت کی عورتوں کی چابی حضرت فاطمہ کے پاس ہوگی۔ لیکن بتاؤ وہ فاطمہ کتنی حیا والی، کتنی شرف والی کہ جب ان کی میت، جب ان کا انتقال ہوتا ہے، جب حضرت فاطمہ اس دنیا کو الوداع کہتی ہے، نصیحت کر کے جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو اٹھانا۔ کیوں نصیحت کرتی ہے؟ اس لیے نصیحت کرتی ہے کیونکہ جب حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں دنیا میں جب تک رہی میری شکل کسی نے نہیں دیکھا، میری طرف کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار دروازے میں تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا منطق طلبات کون ہے، کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہیں پہچانتی، میں تمہارا ابا جان، میں محمد رسول اللہ، میں دنیا جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، میں وہ محمد رسول اللہ ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان آپ اپنی چادر پہلے پھینک دو۔ حضرت فاطمہ کے اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی، جب حضرت فاطمہ نے پوری چادر سے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ دروازہ کھولتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ نے فرمایا فاطمہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ تم دروازہ کھولا کرتی تھی لیکن آج تم نے چادر کا سوال کیا، وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ روتی ہے، دل بلا کر روتی ہے، حضرت فاطمہ روتی ہے اور فرماتی ابا جان 3 دن ہو گئے واقعے پہ واقع چل رہے ہیں، حضرت علی درختوں کے پتے لاتے ہیں لیکن کوئی سائل آ جاتا ہے، درخت کے پتوں کو بھی دوسروں کو دینا پڑ جاتا ہے، اور غربت کا حال یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کے جسم پہ یہ جو کپڑا ہے اس میں 72 پینل لگ چکے ہیں، اس لیے میں آپ کا چونکہ فرمان ہے کہ باپ کی بھی نظر بیٹی جو نوجوان بیٹی پر، جوان بیٹی پر نہ پڑے، اس لیے میں نے آپ کو چادر کی طلب کری تھی۔ امت کی بیٹیوں، امت کی ماں، تم تو اپنے باپ سے حیا کی بات دور کی، اپنے بھائی سے حیا کی بات دور کی، تم تو اپنے سب بھائیوں کے ساتھ، اپنے دیوروں کے ساتھ، اپنے بھابھیوں کے ساتھ کون سے گل چھوڑتے جاتے ہو، کس طرح مارکیٹ جاتے ہو، جھولوں پہ جھولا چھیلتے ہو اور پتہ نہیں کون سی حرکت کرتے ہو، اپنے گھروں کے ماحول کو کون سا ماحول بنائے ہو، پھر چاہتے ہو کہ ترقی مل جائے۔ یاد رکھنا ایسا نہیں ہو سکتا ہے میری ماں بہنوں، تم سوٹ کیس میں اپنے ہزاروں جوڑا کپڑے رکھ کر، نئے کپڑے رکھ کر کبھی بھائی کو سعودی سے منگواتی ہو، کبھی اپنے باپ سے منگواتی ہو، کبھی اپنے بہنی سے منگواتی ہو، پھر اپنے شوہر کو کہتی ہو عید میں میرے نئے جوڑے نہیں ہیں، جبکہ 100 جوڑے کپڑے سوٹ کیس میں بھری رکھتی ہو۔ کیا تمہیں فاطمہ کی حیا نہیں معلوم؟ کیا تمہیں فاطمہ کی تاریخ نہیں معلوم؟ تم کس امید سے، تم کس غرض سے، تمہیں شرم نہیں آتی تم اپنا نام فاطمہ رکھتے
करते हो, फातिमा वाली हया करना नहीं, फातिमा वाला सब्र शुक्र करना नहीं। अरे अरे वो फातिमा जिस फातिमा के सदके तुम्हें जन्नत मिलनी है, उस फातिमा के घर चूल्हे नहीं जल रहे, उस फातिमा के घर दरख्त के पत्ते खाए जा रहे हैं। हजरत फातिमा किस तरह चक्की चलाती है, पैरों में सूजन आ जाते हैं, पैरों में फोड़े आ जाते हैं। अरे रहम करो उम्मत की माँ, उम्मत की बेटियों, उम्मत की माँ, तुम्हें हजरत फातिमा का वास्ता है। आज के बाद से तुम फातिमा की कलीजा बन जाओ, आज के बाद से तुम फातिमा की हया को अपना लो। इंशाअल्लाह कोई हुकूमत का नुमाइंदा तुम्हारे खिलाफ पार्लियामेंट में कानून नहीं बनाएगा, तुम्हारे खिलाफ कोई विधानसभा में कानून नहीं बनाएगा, राज्यसभा में कानून नहीं बनाएगा। जब तुम इस काम के मुताबिक अपने आप को ढाल लोगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है जब ईमान की चमक दमक, जब ईमान की हलावत तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो इंशाअल्लाह फतह नुसरत की तारीफ तुम रकम करते चले जाओ। इंशाअल्लाह हमारा वक्त चुके हो चुका है, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अच्छा भाई मुजाहिद लगते हैं, नबी साहब कह रहे हैं 2-3 मिनट। असल में मैंने अपने जहन के खाते में 20 से 25 मिनट का शेड्यूल बनाया था। ये बात अगर कहीं जाती तो इंशाअल्लाह कुछ और नहीं लेके जाता, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है, एक गुजारिश। मैंने ट्रेनिंग में बहुत लंबी चौड़ी तालीम हासिल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए अप्लाई किया था। 2 से 3 हफ्ते मैंने ट्रेनिंग में जिंदगी गुजारी, सिर्फ 2 से 3 हफ्ते। अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मैं जेएनयू जाकर एक माहौल देखा, एक दुनिया देखी। वो दुनिया कैसी दुनिया है, वो माहौल कैसा माहौल है, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ। आज थोड़े दिन के लिए कॉलेज और स्कूल चले जाते हो, अपने आप को पता नहीं यहूदियों के नक्शे कदम पर ढाल लेते हो। हे नौजवानों, दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर तुम इसी तरह से यहूदियों के नक्शे कदम पर चलोगे तो फिर मस्जिद अक्सा की जो ईद से ईद बजाने की प्लानिंग हो रही है, इस हिंदुस्तान को जो इस हिंदुस्तान में ये जो ख्वाब, ये हिंदुस्तान की तस्वीर जो बदलने की कोशिश हो रही है, इस हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त भारत का सपना देखा जा रहा है। यहाँ हमारे आपके मिटाने की, वजूद को मिटाने की प्लानिंग हो रही है। सबसे पहले शायद आपको मालूम न हो, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद ईमानी साहब दामत बरकतहुल आलिया एक किताब आरएसएस के नाम से किताब की शक्ल में आई है, और इस किताब में बहुत अच्छी तरह बात लिखी गई है कि मुसलमानों को मिटाने के खिलाफ आज नहीं बल्कि आज से तकरीबन 100 साल पहले ही प्लानिंग बन चुकी है, पूरी तैयारी बन चुकी है, पूरा शेड्यूल बन चुका है, पूरा खाका तैयार हो चुका है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, हमारे खिलाफ कोई आज नई बात नहीं कि तैयारी हुई है, आज कोई नई बात नहीं, हमें मिटाने की बात हो रही है। अरे हमें मिटाने की बात तो दौरे सहाबा में भी हुई थी, दौरे तबे ताबईन में भी हुई थी, सल्फ़े सालिहीन में भी हुई थी, मुदब्बिरीन के ज़माने में भी हुई थी, मुफक्किरीन के ज़माने में भी हुई थी, बुज़ुर्गाने दीन के ज़माने में भी हुई थी। और अभी माज़िए करीब में जब ये मेरा वतन अज़ीज़ आज़ाद हो रहा था, हिंदुस्तान आज़ादी के करीब जा रहा था, इस हिंदुस्तान में कितने उलमा की गर्दनें लटकाई गई। आप हमेशा सुनते हो बालाकोट की पहाड़ी से लेकर शामली के मैदान तक उलमा को हर जगह लटकाया जा रहा था। हज़रत रशीद गंगोही ने अपनी किताब में तारीख नोट करी है, एक देहात का गाँव था, बहुत बड़ा गाँव था, जिसकी आबादी तकरीबन 50,000 की आबादी थी। उस गाँव में 4 लोगों की मौत हो गई। 50,000 की आबादी में एक मौलवी को, एक हाफिज को, एक कारी कुरान को तलाश किया जा रहा था। इस घर से इन लोगों के जनाजे की नमाज पढ़ाए। लेकिन मेरे दोस्तों, तारीख ने वो दिन भी देखे, तारीख ने वो दिन भी देखे, वो अय्याम भी देखे, वो साथ भी देखे कि 50,000 के गाँव में कोई एक मौलवी नहीं मिलता था, कोई एक हाफिज कुरान नहीं मिलता था, कोई एक कारी कुरान नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि अंग्रेजों की प्लानिंग थी, हिंदुस्तान में आजादी चाहते हो, सबसे पहले इनके मौलवियों को गिरफ्तार करो, इनके मौलवियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाओ, तख्तेदार पर लटकाओ। यही प्लानिंग की तहत सारे उलमा को जहाँ उलमा मिलते थे उन
उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाता था, तख्तेदार पर लटकाया जाता था। मेरे दोस्तों, मेरे कर्मों के भाइयों, मेरे इज्जतदार मां बहनों, इसी प्लानिंग की तहत सारे जहां से मौलवियों को खत्म करने की प्लानिंग हो रही थी। उस गांव में मैयत लेके लोग फिर रहे थे, रो रहे थे, पिलक रहे थे, सिसक रहे थे। एक मौलवी मिल जाता तो इन 5 लोगों के जनाजे की नमाज पूरी हो जाती, लेकिन कोई एक मौलवी दूर दूर तक नहीं मिलते थे। मेरे भाइयों, तारीख में वो दिन भी देखे हैं, लेकिन आज पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मस्जिद पर पाबंदी नहीं, मदरसे पर पाबंदी नहीं। पाबंदी हमने आयद करी, पाबंदी आपने आयद की, पाबंदी हमारे समाज ने आयद की है। मदरसा खुला हुआ है, मदरसे के बाहर दीवार चमक रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, अच्छी अच्छी दीवार खड़ी हो रही है, लेकिन मदरसे की जीनत जिन तलबा से होनी चाहिए उन तलबा से मदरसे की जीनत नहीं हो रही है। याद रखना, इस हिंदुस्तान को आजादी की जरूरत पड़ी थी, इन्हीं उलमाए किराम की बदौलत आजादी मिली थी। इसलिए तो उलमाए इकबाल ने कहा था, जब गुलसितां को फेंक की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये चमन हमारा है, तुम्हारा है। इसलिए नौजवानों, अपने आप को तैयार करो। कैसे तैयार करोगे? मैंने आपके सामने वो तारीख रखी थी। आरएसएस दौर मेहनत किया, दौर मेहनत किया। कितनी सोसाइटी अपने अंदर बनाई, बजरंग दल बनवाया, एबीवीपी के छात्राओं को हर यूनिवर्सिटी में फैला दिया, हर यूनिवर्सिटी में फैला दिया। आए दिन जेएनयू में दंगे भड़कते हैं, ऐसे ऐसे देश तुरंत नारे लगते, इंसान लगाया जाते हैं। ये जेएनयू के छात्र हैं, जेएनयू के छात्र नहीं होते थे। नजीब की हत्या कर ली गई, नजीब को मार दिया गया। 6 साल हमने खुद प्रोटेस्ट किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने रैली निकाली, हमने घर में प्रदर्शन किया। लेकिन याद रखना, आज तक नजीब की हत्या के बारे में पूरी तरह रिपोर्ट नहीं आ पाई। नजीब को किसने गायब किया? खालिद सैफुल्लाह नाम का एक स्टूडेंट था, लखनऊ यूनिवर्सिटी के टॉप 10 में रह चुका था। उस स्टूडेंट ने भी, उस तालिबे इल्म ने भी रातों रात गायब कर दिया गया। मेरे दोस्तों, हमारे मिटाने की पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन हम सिर्फ फिरका खेलते हैं, हम खानदानों में बटते चले जाते हैं, हम आपस के गिरोह में तकसीम होते चले जाते हैं। आओ मालूम तुम्हें दावत देता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस के फिरकों में न बटो, आपस के गिरोह में तकसीम न हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। और एक बात मैं आपसे इस दरमियान और कह देना चाहता हूँ, अभी जामिया नगर का हत्या, जामिया नगर की मॉब लिंचिंग शायद आपके सामने आई होगी। वो वीडियो दिल दहला देने वाली वीडियो है। मॉब लिंचिंग कहीं हो जाती, कोई बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं, हमारी जुबान उठती है, लेकिन इसी समाज का एक बंदा है जिसका नाम शायद लगा लूं तो भी बेहतर होगा, क्योंकि अभी खुलासा नहीं हुआ है। बहरहाल हम में से ही एक बंदा उस समाज का खड़ा होता है, उस भाई को मार कर अधेरे मौत के मुंह तक पहुंचा देता। फिर जब वो नहीं लगता है, उसके मुंह पे लात मारा जाता है, भूसा मारा जाता है। बताओ, जब हम अपने भाई का गला खुद खो देंगे तो दूसरे को हमें चाहिए कमजोर करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी यूनिटी बनाओ, मजबूत करो। अल्लाह ने कहा है कामयाबी चाहते हो, लेकिन कामयाबी के लिए कुछ शराइत है, वो शराइत क्या है? सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करो, अपनी यूनिटी मजबूत करो, अपने भाईचारे को इख्तियार करो। अगर हमने और आपने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह हमारे समाज की तस्वीर एक अच्छी तस्वीर होगी। हम समाज में बेहतर बेहतरीन इज्जत वाले मुसलमान कहलाए जाएंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने जो बातें कही है कुरान हदीस से मुताबिक हमें भी उस पे अमल करने और आप सबको उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, क़यादत इमामत खिलाफत की खातिर शबाब को फिर से जगाना पड़ेगा। जिन्हें आंखों की लग गई है उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। और जो तारीकियों को जहां से मिटा दे दिया कोई ऐसा चलाना पड़ेगा, जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को उस पे चलाना पड़ेगा। जो आती है मखजूब है जालिम, तुम्हें खुद को उससे बचाना पड़ेगा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।